પત્રકાર પરિષદ સંબોધતા મંત્રી સોનેવાલે જણાવ્યું હતું, કેન્દ્ર સરકાર ટૂંક સમયમાં દેશના તમામ બંદર પર સુરક્ષાને અપગ્રેડ કરવા માટે બ્યુરો ઓફ બંદર સુરક્ષાને એકસાથે મૂકશે. ટકાઉ વિકાસ અંગેના સરકારના કાર્ય ઉપર પણ પ્રકાશ પાડ્યો. કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના બંદરોમાં હાઇડ્રોજન હબ વિકસાવવા માટે મંત્રાલયની મહત્વાકાંક્ષી યોજના વિશે જણાવ્યું. તમામ કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકારના બંદર હાઇડ્રોજન હબ બનાવવાની શક્યતાઓ શોધશે. ઉમેર્યું કે દીનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટીએ આ સાહસ માટે ₹1.68 લાખ કરોડના MOUને આખરી ઓપ આપી દીધો. તમામ મોટા બંદરોને 2047 માટે તેમના પોર્ટ માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કર્યા. રાજ્યો પણ 2047 માટે તેમના પોર્ટ માસ્ટર પ્લાન તૈયાર કરી રહ્યા છે. દેશની કુલ બંદર ક્ષમતા 2600 MTPAથી વધી 2047માં 10,000 MTPAથી વધુ થશે. ઉમેર્યું હતું કે મુખ્ય અને સૂચિત બંદરો, રાજ્ય મેરીટાઈમ બોર્ડ, રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો, UT6 વચ્ચે સંકલન વધારવા બંદર, શિપિંગ, જળમાર્ગ મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત કેવડિયા, ગુજરાત ખાતે 2 દિવસીય 19મી મેરીટાઈમ સ્ટેટ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલની બેઠક આજે સમાપ્ત થઈ હતી. મંત્રીએ ભારતના વધતા દરિયાઈ કદ અને આગામી ગ્લોબલ મેરીટાઈમ ઇન્ડિયા સમિટ 2023નો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. કેન્દ્રીય મંત્રીએ જાહેરાત કરી હતી, તમામ દરિયાઈ રાજ્યો, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ GMS 2023માં ભાગ લેશે. દેશના સૌથી મોટા સમિટમાં એક બનાવાશે. ગ્લોબલ મેરીટાઈમ ઇન્ડિયા સમિટ 2023 ભારત મંડપ, નવી દિલ્હી ખાતે 17મી-19મી ઓક્ટોબર 2023 દરમિયાન યોજાયો હતો. સમિટને સંબોધતા કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી શ્રીપદ નાયકે જણાવ્યું હતું, નવા યુગની ટેકનિકો અપનાવવા, ટકાઉ જીવન પ્રણાલીઓને પ્રોત્સાહન આપવા, પર્યાવરણીય સલામતીની ખાતરી કરવા પર સતત ભાર મૂકવો જોઈએ. મુખ્ય પાસાઓને ખંતપૂર્વક સંબોધી સામૂહિક રીતે અમારી દરિયાકાંઠાની વસ્તીની સર્વગ્રાહી સુધારણામાં યોગદાન આપી શકે છે. કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી શાંતનુ ઠાકરે જણાવ્યું હતું, ભારતીય દરિયા ક્ષેત્રે આપણા રાષ્ટ્રની અર્થવ્યવસ્થા, સુરક્ષા, વ્યૂહાત્મક પ્રગતિના પાયાના પથ્થર તરીકે અપ્રતિમ મહત્વ ધારે છે. વધુમાં અમારા વિસ્તરેલા દરિયા કિનારે લીધે ક્ષેત્રની દરિયાકાંઠાની આજીવિકાને ટેકો આપે છે, ટકાઉ વિકાસને પોષે છે. સ્થિતિસ્થાપક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ભારતની સફરને સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે શ્રેષ્ઠતા તરફ આગળ વધારવામાં બહુપક્ષીય મહત્વ ધરાવે છે. ગુજરાતના કૃષિ મંત્રી રાઘવજીએ જણાવ્યું કે ગુજરાતમાં દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં ટકાવૃદ્ધિ માટેની અમારી પ્રતિબદ્ધતા નવીનતા, સમૃદ્ધિને આગળ ધપાવે છે. ભારત માટે જીવંત દરિયાઈ ભવિષ્ય તરફનો માર્ગ નક્કી કરે છે. વધુમાં ઉમેર્યું, ચાલો સાથે મળીને સફર કરીએ એક ટકાઉ અને સમૃદ્ધ મેરીટાઈમ સેક્ટર તરફ, જે ભારતની દરિયાઈ પરિક્રમાને નવી ક્ષતિજો તરફ ઊંચું કરે છે. કર્ણાટકના મત્સ્ય ઉદ્યોગ, બંદર, આંતરદેશીય જળ પરિવહન રાજ્યમંત્રી માંકલ વૈદ્યે બેઠક દરમિયાન કર્ણાટકના દરિયાઈ ક્ષેત્રના વિકાસમાં સહયોગી પ્રયાસોના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો. હું મુખ્ય પ્રોજેક્ટની મંજૂરી બદલ આભાર વ્યક્ત કરું છું. રાજ્યમાં કાર્ગો હેન્ડલિંગ ક્ષમતા, મેરીટાઈમ ડેવલપમેન્ટ વેગ આપવા માટે પેન્ડિંગ પડેલ માટે ઝડપી મંજૂરી આપવા વિનંતી કરું છું. તેમના વિચારો વ્યક્ત કરતા માનનીય કેન્દ્રીય જાહેર બાંધકામ મંત્રી તમિલનાડુ થિરુ વેલુએ જણાવ્યું છે, 19મી MSDC મીટિંગમાં તમિલનાડુની અનોખી દરિયાઈ કાંઠાની દ્રષ્ટિ ઝળકે છે. સમર્થન માટે આભારી છીએ. આંતરરાષ્ટ્રીય પેસેન્જર ફરી સેવાની આતુરતાપૂર્વક અપેક્ષા રાખીએ છીએ. ઇતિહાસને સેતુ બનાવે છે, શ્રીલંકા સાથે વેપાર કરે છે. દરિયાઈ આયોજન, કોસ્ટલ ટુરિઝમ, કુડલોર ગ્રીનફિલ્ડ બંદર પ્રત્યેની અમારી પ્રતિબદ્ધતા દરિયાઈ વિકાસ માટે અમારા સમર્પણને રેખાંકિત કરે છે. બીજા દિવસે સાગરમાલા કાર્યક્રમના અમલીકરણ સંબંધિત વિવિધ વિકાસ એજન્ડા પર ચર્ચા કરવામાં આવી. નેશનલ મેરીટાઈમ હેરિટેજ કોમ્પ્લેક્સ, લોથલ, ગુજરાતનો વિકાસ, રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગનો વિકાસ, રોપેક્સ ફેરીના પ્રચાર માટે પડકાર અને તકો, શહેરી પેસેન્જર વોટરવે ટ્રાન્સપોર્ટેશન, રોડ અને રેલ પોર્ટ કનેક્ટિવિટી, દરિયાકાંઠાના રાજ્યો, કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની સફળતા વાર્તા, રાજ્ય મેરીટાઈમ બોર્ડ દ્વારા સામનો કરવા આવતા મુદ્દા, પડકારો વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી. पवित्र भूमि केवड़िया में आप सबका स्वागत है और आप सबको मालूम है, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश में पिछली 9 साल में जो परिवर्तन संभव हुई है, इसकी वजह से भारत जाग उठा है और देश ने दुनिया में 5वीं 5th लार्जेस्ट
इकोनॉमी के हिसाब से अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर नागरिक को मनोबल मिली है, शक्ति मिली है, आत्मविश्वास दुगुना बढ़ी है। और इसलिए उन्होंने जो लक्ष्य हमें दी है, बाय 2047 भारत को एक डेवलप्ड नेशन के हिसाब से खड़ा करना होगा। और उसी दिशा पर हमारी भारत सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार, सभी प्रांतों की जनता अब इसी बिंदु पर प्रतिबद्ध हुई है। और हम भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पोर्ट शिपिंग वाटरवेज की तरफ से सभी हमारे कोस्टल स्टेट की यूनियन टेरिटरीज को साथ लेकर आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने भी कदम उठाए हैं। और आज केवड़िया में 2 दिन का हम लोगों ने मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक यहाँ अनुष्ठित की। इस बैठक में सभी हमारे मैरीटाइम स्टेट शामिल हुई, यूनियन टेरिटरी शामिल हुई, और हम लोगों ने डिटेल में सारे बिंदुओं को चर्चा की, ताकि हम अगले दिनों में जैसे हमें लौह पुरुष हमारे परम आदरणीय देश की जिन्होंने सभी प्रदेश को एकत्रित की थी, ऐसे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की शरणों पे समर्पित भावनाओं से प्रणाम देते हुए हम लोगों ने सभी को साथ लेकर, जैसे मोदी जी ने जो मंत्र दी है, टीम इंडिया की मानसिकता से हमें देश को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। उसी हिसाब से केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार एक साथ मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्पिरिट को बढ़ावा देते हुए हम लोगों ने अगले दिनों में अपने पोर्ट व्यवस्था को आधुनिकीकरण के सिलसिले में विश्व स्तर पर हमने खड़ा करने के लिए निर्णय की है। और ये भी लक्ष्य रखा गया है, बाय 2047 हमारी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी अब 2600 है, अब मिलियन मैट्रिक टन। उसको हम अगली 2014-7 तक 10,000 मिलियन मैट्रिक टन बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया अमृत काल में। यानी कि बाय 2047 विल अचीव दैट टारगेट। 10,000 सभी पोर्ट, जितना भी हमारे देश के अंदर पोर्ट है, सभी पोर्ट एक साथ मिलकर, प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर इस काम को हम सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। और दूसरी बिंदु है हमारे, जैसे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत हमारी अगले दिनों में कार्बन एमिशन जीरो करने के लिए जो भी 2070 तक हमें लक्ष्य दी है, उसी दिशा पर आगे बढ़ाने के लिए, ब्लू इकोनॉमी के सिलसिले में आगे कदम उठाने के लिए हम लोगों ने ग्रीन शिपिंग, ग्रीन पोर्ट बनाने का भी निर्णय की है। और हमारे जितना भी पोर्ट है, सभी पोर्ट को हम हाइड्रोजन हब के हिसाब से खड़ा करने के लिए भी निर्णय की है। और आप लोगों को ये बात जानकर खुशी होंगे कि अभी हमें दीनदयाल पोर्ट में इस सिलसिले में हमें 1.68 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमें जो एमओयू हुए हैं, तो इसी हिसाब से हर पोर्ट को अगले दिनों में हाइड्रोजन हब के हिसाब से हम खड़ा करेंगे। तीसरी बात हुई कि अगली अक्टूबर को दिल्ली में हमारे 17 से 19 अक्टूबर तक ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सुनहरा मौका है। इसके पहले भी 2 बार हो चुके हैं, जिसके जरिए काफी इन्वेस्टमेंट संभव हुई है
और अगले दिनों में जितना भी हमारे दुनिया में, विश्व में मैरीटाइम नेशन है, इस मैरीटाइम नेशन को इस सभा में बुलाया गया है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम इस समिट को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे हर मैरीटाइम स्टेट, कोस्टल स्टेट इस कार्यक्रम में भाग ले, इस विषय पर भी चर्चा हुई और हमारे हिंदुस्तान में चाहे कोस्टल शिपिंग हो, चाहे एक्जिम ट्रेड हो, चाहे इनलैंड वाटरवेज हो, इसमें 10 लाख करोड़ का पोटेंशियलिटीज है। तो अगले दिन में यही लक्ष्य होगा कि हमारे यहां अधिकतर अधिक एफडीआई संभव हो और 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो और इसी इन्वेस्टमेंट के लिए हमारी तरफ से अब तक पोर्ट को मॉडर्नाइज करने के सिलसिले में अलग अलग कार्यक्रम के जरिए जो भी कदम रखा गया है, इसके वजह से हमारा पोर्ट का इफिशिएंसी बढ़ चुका है। तो इसलिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने से 15 लाख से अधिक यहां रोजगार मिलेगा। तो ऐसा ही लक्ष्य लेकर हम लोगों ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है। तीसरी बात, हमारे नेशनल वाटरवेज, आप लोगों को मालूम है 2014 तक कांग्रेस के कार्यकाल में नेशनल वाटरवेज को उन्होंने कुछ भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। उनके पास कोई पॉलिसी भी नहीं थी, प्रोग्राम भी नहीं थी, कोई उनका दिशा भी नहीं थी। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही नेशनल वाटरवेज को बढ़ावा दी और कांग्रेस का कार्यकाल में सिर्फ 3 ऑपरेशनल नेशनल वाटरवेज हुआ करते थे, ओनली 3। मोदी जी ने उनको 111 तक मान्यता दी और आज 2014 तक सिर्फ 16 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी हुआ करते थे। लेकिन आप वहां से लेकर सिर्फ 9 साल के अंदर नेशनल वाटरवेज को मान्यता दी और इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिसके वजह से आज 125 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है और अगले दिनों में हमारा लक्ष्य होगा इसको 500 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने का। और पीपीपी मूड में भी अपने सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यह तय की है, अभी जो 50% है उसको हम 85% तक हम ले जाने का रोड मैप हम लोगों ने प्रस्तुत की है। और साथ साथ में हमारे अगले दिनों में ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी ये भी बनेगा और राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार दोनों मिलकर इस विषय को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप पत्रकार बंधु, आप लोगों ने हमेशा हमें साथ दी है और इस सिलसिले में भी आप हमारे संदेश को आगे बढ़ाने के लिए आप भी साथ देंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और भारत को विकसित देश के हिसाब से खड़ा करने के लिए हर नागरिक ने आप मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रतिबद्ध हुए हैं। हमने देखी है हर प्रांत को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो स्पिरिट, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्रों के द्वारा पिछले 9 साल के अंदर जो विकास संभव हुई है, हर प्रदेश को शक्ति मिला है। देश के अंदर ऐसा कोई प्रदेश, ऐसा कोई केंद्र शासित इलाका नहीं है जिसको शक्ति नहीं मिला। सबको एक इक्वल स्टेटस देते हुए परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंट एजेंडा को जिस हिसाब से आगे बढ़ाया, इसके वजह से आज देश जाग उठा है। देश ने दुनिया में शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त की है और आप लोगों ने देखी है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुका है और इंडिया इन्फ्लुएंस ग्लोबल स्टेज पर, सेंट्रल स्टेज पर किस हिसाब से आगे बढ़ाने का उन्होंने काम की है, आप लोगों ने खुद देखा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आप भी मदद दें। धन्यवाद। जय हिंद। दीपक जगतापનો રિપોર્ટ આજ 9 ન્યૂઝ રાજપીપળા।